دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ محترم علماء کرام اور بزرگ مومنین، نوجوان عزادار، السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں آخری مرتبہ انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد یقیناً فیصلہ وہ ہوگا جو انشاءاللہ صحیح ہوگا، جو مولا انشاءاللہ چاہیں گے۔ شروع سے ایک مرتبہ پھر کہ اصل میں ہمارا اعتراض کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے۔ ہم کو کوئی عالم مانے یا نہ مانے، کوئی ذاکر سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی جاہل کہے یا نہ کہے، ہمارا اس سے کوئی پرسنل کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ مولانا ذکی باقری موصوف جو یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے واقفیت رکھتے ہیں اس طرح سے کہ السلام علیکم، مولانا علی پور ہی کے ہیں اور کینیڈا آپ تشریف لے گئے، اس سے پہلے بھی یہاں پہ مختلف شہروں میں آپ مجلسیں پڑھتے رہے اور اس حوالے سے ہم جانتے تھے۔ کچھ سالوں سے مولانا یہاں تشریف لا رہے ہیں انڈیا اور مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کی مجلسوں میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، تمام مومنین شرکت کرتے ہیں۔ وجہ مسجد میں بھی مجلسیں مسلسل ہوتی رہیں، باندرا مسجد میں مجلسیں ہوتی رہیں، زید پیلیس میں ہوتی رہیں۔ مولانا پر اعتراض سب سے پہلا ہم نے جو ذاتی پرسنل طور سے کیا تھا، جب کوئی اختلافی معاملہ نہیں تھا، وہ بالکل محبتانہ تھا، اس لیے کہ اس وقت ہماری تقریریں بھی بل میں ریکارڈ ہوتی تھی۔ وہ خندق کے معاملے پر تھا۔ مولانا نے کہا کہ شاید لفظ جو ہے وہ اس سے میں واقف نہیں ہوں، اور یہ ساگر ہوٹل میں میری وہاں سے گفتگو ہوئی ہے دوستانہ ماحول میں، اور مولانا اس کی تائید فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو وہاں اٹھا وہ یہ کہ مولانا موصوف نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے 13 ہیرو ہیں اور ایک ہیروئن، جس پہ وہاں مومنین نے اعتراض کیا۔ انجمن شمشیر حیدری اور دوسری انجمنوں کے اور اداروں کے لوگ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ قبلہ ذاکر اور عالم کو لفظوں کی بھی احتیاط بہت کرنی چاہیے، اگر آپ کی نیت اچھی بھی تھی تو بھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ بہرحال وہاں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایک رول ماڈل کی طرح پیش کرتا تھا، انگریزی میں اس کو یوں کہتے ہیں، اور اس پہ ایک مسئلہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعتراض رہے، اور کافی عرصے سے مولانا نے ڈونگری کی خواجہ مسجد میں مجلسیں نہیں خطاب کی۔ لوگوں کو وہاں پر اعتراض تھا جس میں میرا انوالومنٹ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے جو 2 اعتراض تھے وہ میں ساگر ہوٹل میں مولانا کی خدمت میں پیش کر چکا تھا۔ مولانا پورے ورلڈ میں مجلس پڑھتے ہیں، UK میں بھی پڑھتے ہیں، دبئی میں بھی پڑھتے ہیں، پاکستان میں بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر جیسے دبئی میں ہمارا اور آپ کا سامنا بھی ہوا، ہم نے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر نظر بھی نوش کی۔ اور UK میں بھی مولانا جس زمانے میں اسٹینبول میں مجلسیں پڑھ رہے تھے، اس زمانے میں ہم ساؤتھ لندن میں مجلسیں پڑھ رہے تھے۔ اس دوران میں مولانا کی مجلسیں، اس سلسلے میں بہت سے مومنین، بہت سے نوجوانوں نے، بہت سے مولائیوں نے اعتراض کیے، اور وہ ہمارے پاس بھی آئے۔ اب ہر شخص کا یہ فرض ہوتا ہے بحیثیت ایک مومن کے
اگر کوئی ہمارے پاس آیا ہے، چاہے وہ ہم کو ایک عالم سمجھ کے آیا ہے یا ایک ذاکر سمجھ کے آیا ہے یا ایک عام مومن سمجھ کے آیا ہے، ہم نے اپنا فریضہ شرعی یہ سمجھا کہ ہم اس مسئلے پر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کریں۔ ہم نے جن جن علماء سے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے، ان علماء نے اس سلسلے میں جو بیانات دیے تھے اس کے مطابق ہم نے ان علماء سے یہ کہا کہ اگر آپ یہ بیان ریکارڈ کروا دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہم مولانا ذکی باقری کو ڈائریکٹ یہ چیز بھیج دیں گے اور اس کے بعد وہ اپنا بیان جاری کریں گے۔ بہرحال ہمیں نہیں پتہ کیا مسائل ہیں، کیا وجوہات ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں وہ ریکارڈنگ کیوں نہیں ملی۔ اس کے بعد کافی ہوا اڑائی گئی، کافی ہمیں بدنام کیا گیا، یہ کنٹروورشل آدمی ہیں، یہ بلا وجہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جذباتی ہیں، علماء کا احترام نہیں کرتے، علماء مخالف ہیں، مجتہد مخالف ہیں۔ ہم نے اس سب کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم انسان ہیں، انسان کو غصہ آتا ہے، کوئی غیر متعلق آدمی کوئی بیچ میں بولتا ہے تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس ایشو کو چھوڑ کر ہمیشہ یہی کوشش کی کہ پرسنل معاملہ نہ ہو، صرف پوائنٹ پہ بات کی جائے۔ ہمارے پاس اس وقت مولانا کے کم سے کم 50 نقطے ہیں، لیکن ہم فی الحال صرف 5 نقطے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ نقطے ہیں کہ جو مولانا کے سامنے پہلے بھی پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے جو میں آپ کو اس مائکرو فون پر سناتا ہوں۔ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ موبائل فون آف کر دیں تو یہ ٹائم مسئلہ حل ہو جائے۔ نہیں، یہ کلام مجلس بھی یہی ہے، آپ بند کر دیجیے، آپ کر دیجیے یا سائلنٹ کر دیجیے، بار بار بچتا رہتا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے آپ حضرات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت الدائم علی اعدائهم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ سب سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہے کہ کچھ نوجوان ہماری قوم کے بیدار ہیں اور ایک خطیب کے، ایک عالم کے، ایک ذاکر کے الفاظ اور جملوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور میں ان کے جملوں کی، ان کے اقدار کی، ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور ایسے ہی الرٹ رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے شیعہ الرٹ ہوتے تو آپس میں یہ تقسیم کبھی نہ ہوتی۔ نہ صرف جذباتی الرٹ رہیں بلکہ ہر مسئلے میں مومنین کو بہت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، خصوصاً جو آج عراق میں خون بہہ رہا ہے۔ اگر ہم الرٹ رہیں اور اس کے ساتھ دیں تو نہ جانے آج مومنین کیا کیا کر سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو سالو کرنے کے لیے، جبکہ اسی وقت نہ جانے کتنے یتیم ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنے بے کس ہو رہے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ کون سا ہاتھ ہے جو انسان، جو مومنین کو تقسیم کر رہا ہے، اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ بہرحال سب سے پہلے اس محفل میں مجھے یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے یہاں پر فریق کون ہے اور یہاں پر منصف کون ہے۔ یہاں پر پہلے کی بات طے کر دیجئے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، آپ بھی پریزنٹ کریں جس طرح کہ آپ نے 5 پوائنٹ پہ لا کر کے بوائل ڈاؤن کیا ہے، تقسیم کیا ان میری تقاریر کو۔ آپ کہتے چلے جائیے، میں بھی کہہ دوں گا میرا مسئلے کو۔ علماء کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ حرف آخر ہوگا، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ حتیٰ کوئی کہہ دے کہ مجھے تقریر کرنا نہیں چاہیے تو میں آنکھ بند کر کے گھر میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا، اور اگر عالم کہہ دے کہ یہ پڑھ سکتا ہے تو اس کے بعد کوئی پھر شرارت نہیں ہوگی۔ یہ علماء کی طرف سے مجھے اور آپ کی طرف سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ طے کر کے بیٹھیں، ورنہ ہماری بیٹھک بیکار ہو جائے گی۔ اور میری طرف سے علماء جو ڈیسائیڈ کریں گے، یہاں پر ماشاءاللہ سبھی علماء تشریف فرما ہیں، جو ڈیسائیڈ کریں گے اس کو سمعاً و طاعاً قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ بھی یہ تعہد کیجئے تو میں آگے بڑھوں گا، ایک ایک مسئلے کا جواب۔ علماء میں ہے، آپ جو کہہ دیں گے بات اپنی صفائی جو کہہ دیں گے وہ مان لی جائے۔ نہیں ایسا نہیں، آپ علماء کرام کو یہاں بنائیے حکام، اور یہ حکام ہیں، اور یہ علماء اگر جب تک کہ اجازت نہیں دیں گے، ورنہ جو ہماری گفتگو کہیں پر نہیں رک سکے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ مولانا یہ بات پہلے طے ہو چکی ہے اس میٹنگ سے پہلے کہ فیصلہ آخر میں ہوگا، پہلے جو اعتراض ہے کہ اس کی آپ جواب پیش فرمائیں۔ میرا آخر میں فیصلہ ہو، پہلے فیصلہ ہو، آیا فیصلہ آپ کو قبول ہے؟ اگر مولانا جو بزرگ علماء فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں کیوں نہیں قبول ہوگا؟ اللہم صلی جبکہ اس سے قبل کہا جا چکا ہے کہ علماء کا فیصلہ ہے آخر حرف آخر ہوگا، اس میں بیچ میں انٹرفیئر کرنے کو بہت اچھا ہے۔ چلیے آپ نے بھی قبول کر لیا ہے کہ علماء کا فیصلہ آخری ہوگا، اور ہمیں ہر مرتبہ ہمارا استاد کہا کرتا تھا یا قرباش یا متصل بقرباش بلا نجس میں مشی وازودی۔ میں عموماً جو ہوں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی علماء سے میں منسلک رہوں، بغیر اس کے میں ایک طالب علم ہوں، حقیر فقیر خدا انشاءاللہ ہماری خدمات کو ذات پروردگار اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجا ہم نے پہلے گزشتہ سال یہاں پر اسی مقدس بیت میں، اسی جگہ پر جو میٹنگ ہوئی تھی، جو علماء نے چاہا تھا کہ ہم ان کے حکم کے مطابق بیٹھے تھے، مگر افسوس یہ کہ جن کو آنا چاہیے تھا وہ کوئی نہیں آیا، یہ بات بھی ریکارڈ رہے۔ پہلا مسئلہ بتاتا ہوں میں، سب سے پہلے بعض وقت اگر سبقت اللسانی میں کوئی تقریر میں، کوئی تحریر میں اشتباہات ہو جائیں، تو اگر ایسا ہی ہے تو قرآن کی کوئی ایک آیت لے کر لا تقربوا الصلاۃ آدھی آیت لے کر کے نماز نہ پڑھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اشتباہ کر رہا ہے۔
नमाज के करीब ही मत जाओ, तो दुनिया ये कहेगी कि वहाँ तुम सुकारा भी तो है, आगे बढ़िए। तो इसी तकरीर को अगर पहले से आखिर तक अगर आप सुनेंगे खुद मराहिल तय हो जाएंगे। मगर बहरहाल इस टुकड़े में भी मेरा अकीदा वाज़ेह है। अगर मैं अलम के ख़िलाफ़ होता तो इसी टुकड़े का आखिरी जुज़ है, जाइए अलम के सामने दुआ कीजिए। तो इसके माने कि दुआ करने को मैं हुक्म दे रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ। अगर मैं मुखालिफ होता तो अलम के सामने जाने को बिदात समझता था, अलम को बिदात समझता था। मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि दुआ ये भी हो सकती है कि मौला मेरा काम कर दे। मौला किसे कह रहा हूँ मैं? मौला कह रहा हूँ अलम के सामने। सुन लीजिए आप, उसी टुकड़े में मौला मेरा काम हो जाए तो किसी बेकस का, किसी यतीम का फीस अदा करूंगी तो आपकी दुआ बहुत ज्यादा जल्दी कबूल होगी। अगर इसमें उलमा कोई खिलाफ समझ रहे हैं तो मैं फैसले के लिए तैयार। इस सिलसिले में बेंगलोर में मौलाना यूशा साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह, खुदा इंशाअल्लाह उनके साहिब बहुत बीमार है, दुआ कीजिए आप सब, खुदा इंशाअल्लाह साया उनका बाकी रखे। बहुत काबिल उलमा में से हमारे लिए बाप की तरह से उनके सामने भी मजलिस से पहले गुफ्तगू हुई, मैंने तहरीरन दिया है, वो तहरीर आज भी अभी फैक्स करा सकते हैं आपको। अगर खुदा न खास्ता इस मसले में किसी मोमिन को चोट लगी है कि मैं अलम के खिलाफ हूँ तो मैं बारगाह फातिमा ज़हरा में माफ़ी का खासगार हूँ, किसी का ऐरे गैरे का माफ़ी मैं चाहता नहीं हूँ। हमें बहुत खुशी है अगर मौलाना मौसूफ अलम के मुखालिफ नहीं है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अलम के बारे में कह रहे हैं। जुमलों की तरतीब कुछ इस तरह से थी कि मन्नत दूसरी की जाए, इसलिए हमारा एतराज़ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने खुद कह दिया हम इसके मुखालिफ नहीं है, तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। और यकीनन माफ़ी जो है वो शहज़ादी कौनैन की बारगाह में ही हो सकती है। और हमारा जो एतराज़ था बहरहाल वो लफ्ज़ अलम बहुत हो गए पर था, उसको छोड़ के रिप्लेस थे। हमारा एतराज़ ये था इन जुमलों पर। सबसे पहले तो ये कि मौलाना ज़की बाकरी पर हमारा कोई भी एतराज़ इस वजह से नहीं है कि हमें उनसे कोई पर्सनल ग्रज है। सबक़त लिसानी हम लोगों से भी होती है और दूसरे बुजुर्ग उलमा से भी होती है। लेकिन मसला ये है कि ख़ुद मौलाना मौसूफ वाक़िफ़ है इस बात से कि जहाँ पर उलमाए खैर का तज़किरा है वहीं उलमाए सू का तज़किरा है, जहाँ पर नेक अफराद का तज़किरा है वहीं बुरे अफराद का तज़किरा है। इसकी नीयत क्या कहने में क्या है ये हमें नहीं मालूम, लिहाजा हमें जो सुनाई देता है हम उसी के एतबार से बात करते हैं। हमारा एतराज़ ये था कि मौलाना अमीरुल मोमिनीन स्पोर्ट्समैन थे। स्पोर्ट्समैन एक खिलाड़ी को कहते हैं और लाहबुल ऐब के सिलसिले में इमाम का कौल मौजूद है कि हम इससे बरी हैं। जनाब बहलूल का वाक़या मौजूद है कि उन्होंने ला के इमाम की खिदमत में खिलौने रखे और इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसे ले जाओ, इसलिए कि खेलकूद से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। और इस टुकड़े पर दूसरा हमारा एतराज़ ये था कि उनकी जो तैयारी जंगी होती थी उसी वजह से जो सिफ़ीन में उनकी ताकत थी, बद्र में जो थी वो उसी वजह से थी। क्या माने? सुपर नेचुरल नहीं बल्कि रोज़ाना इस पर काम होता था। सुपर नेचुरल यानी आफाकी। अब जब मौला खुद बाब खैबर उठाते वक्त कहते हैं इन्नी अगलब तो बाबा खैबरिन बेक़ुव्वत रहमानी अदा बेक़ुव्वत जिस्मानिया, तो हम ये मानेंगे कि मौला खुद कह रहे हैं कि मैंने रहमान की दी हुई कुव्वत की वजह से, सुपर नेचुरल कुव्वत की वजह से इसको मैंने उठाया, ना कि इंसानी कुव्वत की वजह से। दूसरी बात, जुल्फ़िकार खुद सुपर नेचुरल थी। तो हमारा इस टुकड़े पर ये एतराज़। फिर भी बहुत खुशी है, फिर अच्छा होता कि वो पूरी मजलिस सुनी जाती। मैं माशाल्लाह सामईन उलमा की खिदमत में और इनके जज्बात का फिर एहतराम करता हूँ और मैं दावत देता हूँ कि आपकी जज्बात इसी तरह से वाज़े रहिए और आँख खुली रखिए, कान भी आपके वाज़े खुले रहें।
कोई मैल वगैरह निकाल दीजिए ताकि समाअत में कमी ना हो जाए। खुदा इंशाल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि हम लोग पूरी तरह से बातों को अच्छी तरह से सुने और उसी चीज़ को, बल्कि कुरान ने बताया है कि वबशिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल, उन बंदों को बशारत जो हमारे कौल को सुनते हैं। और गौर से इस्तिमा है, सिमा और इस्तिमा में फ़र्क क्या है उलमा जान। बहरहाल मैंने उस मजलिस का जो महवर बनाया था, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। ये हमारा महवर था। मासूम की ज़िंदगी, इमामों की ज़िंदगी, अंबिया की ज़िंदगी एक मॉडल है हर इंसान के लिए, न सिर्फ अरब के लिए, सारे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल मैसेज होता है इमाम की तरफ से। जब भी इमाम बोलता है या अमल करता है, वो उसकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना होती है। अगर वो सुपर नेचुरल बन करके अगर हमारे सामने खिदमत करे तो फिर हमारे लिए वो नमूना नहीं हो सकेगा। वो ये कि वली है, वो वली के माने मैंने अभी 5 मजलिसें पढ़ी हैं अलीपुर में, इंशाल्लाह वो आपको सामने पेश कर दी जाएंगी। विलायत यानी क़ुर्बत इलाही को कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा करीब होता है वो कस्बे फैज़ कर लेता है। आइमे मासूमीन अंबिया सबसे ज़्यादा करीब थे अल्लाह से। और ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैं बात चीज़ें जुमले भी कहते हुए यहाँ डरता हूँ, इसलिए कि सलमान और अबू ज़र के बारे में यही है कि सलमान का अक़ीदा अगर अबू ज़र को मालूम हो जाता तो कत्ल कर देते। तो यही मसला है कि हम लोगों को भी जो है कत्ल करने के बजाय, झगड़ा करने के बजाय आपस में बैठ करके समझना चाहिए अफकार क्या है। तो अगर किसी मासूम की ज़िंदगी, जैसे मौला अमीर की ज़िंदगी के सिलसिले में आप सब जानते हैं, सारे उलमा पढ़ते हैं, सबके रिकॉर्ड सुन लीजिए आप कि मौला अमीर मोमिनीन ने यहूदी के बाग में मजदूरी की। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, ही वाज ए लेबरर, तो आपके लिए बहुत खलेगा। मौला को लेबरर कह दिया, एक मजदूर कह दिया। चूंकि लफ्ज़ से हम आशना नहीं हैं, हम लोगों को वो अल्फाज खलते हैं और समझ में नहीं आता। मैं समझता मेरा जो इस्तेमाल हुआ है वह इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में, वरना शिजा के माने, बहादुर के माने, ये तमाम मानों का अगर ट्रांसलेट करते चले जाएं वही माने निकलेंगे जो माने मैं बता रहा हूँ। बहरहाल अगर इसमें कोई इस्तेमाल हुआ तो मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यह है कि माशाल्लाह खुदा सलामत रखे हमीद साहब को, और खुदा इंशाल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे, और खुदा इंशाल्लाह ऐसी इनके ज़बान में असर दे कि ये उलमा के साथ आगे बढ़े। चार चांद में हमारा तो क्या, आजकल जाने वाले आजकल के नौजवान आप जो हैं इंशाल्लाह इल्मी कसबी हासिल कर लीजिए ताकि आपके सुखन में और भी इसका असर हो। मेरा ये ख्वाहिश है कि अगर हम इस चीज़ को अकीदतन लेकर के जाएंगे तो बहुत से शहजादी फातिमा ज़हरा को चक्की पीटने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मासूम ये फरशट इमाम फरमाते हैं दोनों हाथ इतने गड्ढे आ गए थे कि दोनों हाथों में गड्ढे थे शहजादी के। शहजादी क्यों कर रही हैं? ताकि बॉम्बे की ये गरीब चरखा चलाते हुए ये महसूस ना करे कि मेरी हयात इस तरह से गोशे व हयात में शहजादी तो इशारे से दस्तरखान मंगवा लेती हैं, इशारे से खाने जन्नत मंगा लेती हैं, मेरी हयात का क्या हो? तो शहजादी वहाँ जवाब दे रही हैं, मैं हर बेकस का साथ देने के लिए, गो मुझ में इख्तियारात हैं, मैं चाहूँ तो पूरे दस्तरखानों को मैं मंगवा सकती हूँ, खाने जन्नत मंगवा सकती हूँ, लेकिन मैं चूँकि एक नमूना हूँ हर औरत के लिए, मैं चला रही हूँ चक्की को ताकि आइंदा कोई कंप्यूटर चलाए, कोई औरत कोई चरखा चलाए तो उसको कभी ये एहसास ना हो कि मैं कम हूँ व ज़्यादा। इसके बावजूद फिर मैं कहूँ कि अगर इस सिलसिले में मुझे मेंबर पर बैठ करके मोमिनीन के जज्बात से खेल करके, उनके जज्बात को ठेस पहुँचा करके तबलीग करना अच्छा नहीं, किसी का अच्छा नहीं है। मैं उलमा से भी गुजारिश करता हूँ, खतबा से भी तो यहाँ तशरीफ फरमाएं, कभी भी कोई खतीब किसी को ठेस पहुंचाकर अपना मैसेज दे नहीं सकता। अगर कहीं ठेस पहुंचा है, फिर बारगाह परवरदिगार में वो सबसे बड़ा गफूर रहीम, फिर बारगाह अहले बैत में जो सबसे ज़्यादा करीम, और जैसे को बख्श देते हैं, तो हम उसकी बारगाह में माफ़ी की ख्वाहिश। मौलाना मसूद ने इस मतलब की जो है
बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में जो बातें अर्ज़ की, यकीनन हम सबको की बारगाह में करना चाहिए। लेकिन 2-3 बातें जो इब्तिदा में हुई थी, मैं इल्तिमास करूँगा मौलाना से कि काफ़ी अच्छे माहौल में, दोस्ताना मोहब्बताना माहौल में गुफ्तगू हो रही है। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम लोगों ने पूरी मजलिस नहीं देखी है, तो हम लोगों ने एक अशरा 5-5 बार देखा है सिर्फ इसीलिए कि खुदा न खास्ता हम किसी पर तोहमत तो नहीं लगा रहे, और सिर्फ हमने नहीं देखा है बल्कि हमारे साथ 10 अफराद ने बैठकर उस अशरे को 5 मरतबा देखा है। दूसरी बात यह है कि उन अफराद में ख़ुद ज़ाकिरीन मौजूद हैं, जो यहाँ कुछ 1-2 बुज़ुर्ग भी बैठे हैं वो भी मौजूद हैं, और उन्होंने मिसाल दी ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी और वो भी इतना तो समझते हैं कि आधा टुकड़ा लेने से, बल्कि एक जुमले की तरतीब और अंदाज को बदल देने से माना बदल जाते हैं, तो ये गलत फहमी ना हो। तीसरी बात मेरी गुजारिश ये है कि लफ्ज़ शरारत अगर किसी ने गलत पढ़ा है तो मैं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उलमा हैं, हमने इसको तौहीन महसूस किया, इसको गलत महसूस किया तो कहा। अगर एतराज़ किया गया, कुछ गलती हुई तो एतराज़ किया गया, तो उसके लिए लफ्ज़ शरारत जो है मैं समझता हूँ, मेरी राय है, वैसे उलमा बाद में जो फैसला करेंगे उसे कबूल करूँगा। चौथी बात ये है कि इस टुकड़े का अभी भी जो जवाब मौलाना ने दिया है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए कि अइम्माए मासूमीन की जो इंसानी ज़िंदगी का पहलू है उसको हम सब जानते हैं। हम लोग खुद पढ़ते हैं कि मौला यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे, जनाब फातिमा चक्की पीसती थी, अइम्माए मासूमीन आम इंसान की तरह इसलिए ज़िंदगी करते थे, गुजारते थे क्योंकि वो हमारे लिए हुज्जत बनकर आए थे। यहाँ पर एतराज़ उनके सुपर नेचुरल ताकत का जो मामला था उस पर था। बहरहाल मौलाना खुदा की बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में जो कुछ कह चुके हैं, उलमा ने इसको सुन लिया है, तो अब मैं इस नुक्ते से आगे बढ़ता हूँ। स्पोर्ट्समैन का हिंदी मीनिंग क्या है? स्पोर्ट्समैन का हिंदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत मैंने से कि नहीं, एक ये हो रहा है पूरे कम्युनिकेशन हो जाए हमेशा के लिए बात जो है देखो बात हमेशा के लिए। देखिए वही है हमारे जो है, मैं समझता हूँ 25 से तकरीबन 30 साल के करीब, 26-27 साल से हम मगरबी दुनिया में, हमारे लिए जुज़े ज़िंदगी हो गया है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। अभी पाकिस्तान में किताब छपी है, उसका नाम है सुपरमैन ऑफ इस्लाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से। अगर खुदा न खास्ता वो किताब मगरबी दुनिया में जाएगी तो सब सुनेंगे, इसलिए कि सुपरमैन एक मूवी है जो अमेरिका में बनी है। वो सुपरमैन जो है मशहूर था और उसका एक्सीडेंट हुआ, माजूर था शायद, आजकल वो है या मर गया, मुझे मालूम, जहन्नम चला गया होगा। लेकिन मुझे अगर उस सुपरमैन किताब से मुताल्लिक़ किसी को एतराज़ होगा, नाम से मुताल्लिक़ तो इश्तिबाह हो जाएगा। मासूमीन की हयात जब हम कह रहे हैं कि नमूना है, तो पूरे मौला अमीरुल मोमिनीन की हयात को उठा करके देखिए, घरेलू ज़िंदगी मौला की, और ज़िंदगी जो मौला 25 साल गुजारे हैं, खुसूसन 3 अदवार में लानतुल्लाह अलैहिम अजमाईन, और उस दौर में अइम्माए मासूमीन खुसूसन मौला की ज़िंदगी जो है, मौला की ज़िंदगी जो है, ज़रा सा गौर करें, आप भी तवज्जो करें, चूँकि सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, आप भी तो, और गुजारिश करता हूँ क्या बीच वाले ना बोलें ज़्यादा, बेहतर है कि आप ही हमारे से गुफ्तगू करें। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने 25 ईयर्स तक, जो आखिरी जंग है जंग खैबर में जो जौहर दिखाए थे मौला ने, उसके बाद से लेकर के फिर जंग सिफ़ीन तक तकरीबन 25 साल से ज़ायद अरसा हो गया। इस अरसे में अइम्माए मासूमीन मौला की सीरत क्या रही है, चुनांचे आप लोग सुनते ही रहते हैं। मौला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की के लिए शजाअत के लिए मौला इमाम हुसैन ने दाद दी है, बल्कि शागिर्द के अल्फाज मौला ने जौहर सिखाए हैं जंग के, मौला ने हज़रत अली अकबर को जंग के फ़नून सिखाए हैं। ये सब अब ये सवाल है कि आया फ़नून सिखाने की ज़रूरत है? शहज़ादी फातिमा ज़हरा जाती है शादी के बाद, बाबा मेरी शादी होगी, अब बताइए कि आप, मेरा जिम्मेदारी क्या है, अली की जिम्मेदारी क्या है? तो ये हो जाएगा कि वो बहादुर या शजी वो आदमी है जो मुसलसल काम करता है, खिलाड़ी। तो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं इस खिलाड़ी के लिए उसी तरह से जिस तरह से सुपरमैन का ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक मिनट है, जिस तरह से हीरो का, अगर आप हीरो के लफ्ज़ को अगर इश्तिबाह समझ रहे हैं तो खुसूसन 14 सितारे, एक किताब है आपके पास, मशहूर है 14 मासूमीन की, ट्रांसलेट कीजिए 14 हीरोज।
अगर आप उस किताब को 14 हीरोज कर देंगे, 14 स्टार्स के माने क्या है आजकल की दुनिया में? फिल्म स्टार से हटकर कोई और स्टार। आप जरा सा बीच में आपस में गुफ्तगू मत कीजिए, मेरा बयान हो जाए फिर बयान कीजिए, और ना जो फिर तवील हो जाएगी गुफ्तगू। तो ये बात अर्ज करने के बाद मैं अर्ज करूंगा कि मुमकिन है कि इंतखाब अल्फाज में हमारा इश्तिबाह हो। फिर मैंने उसके बाद यही कहा कि कोई हमारा अकीदा नहीं, विलायत का अकीदा है। विलायत अगर आप समझते हैं मौला इमाम हादी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जामिया को पढ़िए, वो मेरा अकीदा है, जिसका मैं बिल्कुल युनज़िरुल गैज़, आपकी वजह से बारिश नाजिल होता है, मैं वो समझता हूँ, आपकी वजह से कायनात चलती है, वो फज़ाइल को मैं समझता हूँ। मैं पेश कर रहा हूँ नौजवानों को मासूमीन की हयात एज ए नमूना, उस नमूने को आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे अल्फाज को इस्तेमाल में मत ले जाइए। उम्मीद है कि हम लोग जो है इस बात, फिर मैंने माफ़ी चाहिए और उम्मीद है कि हम तमाम हजरात इस चीज़ को इखलासन, अगर हम हकीकत में यही चाहते थे तो हमको पहले ही आकर के एक दिन पहले गड़बड़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाकरी आ रहा था, यही मीटिंग भी मौलाना आ रहा है, या बाकरी कहिए, मुझे ज़की कहिए, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। अगर आ रहा है वो, उससे बैठ के बात कर लेंगे। यहाँ पर आपको मसाजिद में जाने की ज़रूरत नहीं थी, इमाम बारगाह में जाने की ज़रूरत नहीं थी, रोकने की ज़रूरत नहीं। अगर हम हकीकत में इखलासन कौम में चाहते हैं एक स्मूथ रन हो कौम, हमारी कौम फिर बटे नहीं, तो हमारे अखलाक भी ऐसे ही होना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर कोई जुमला कह रहा हूँ तो उसके लिए आप भी मुझे नसीहत कर सकते हैं, मैं भी छोटों से भी नसीहत कबूल करता हूँ, बुजुर्गों से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इसमें जो वजाहत की उसमें लफ्ज़ी तर्जुमा में जैसे उन्होंने शुजा कहा, बहादुर कहा, तो उस वक्त फ़ौरन हमने कहा कि उसका असली तर्जुमा खिलाड़ी होता है, या आपने हीरो कहा तो उसको स्टार कहा। असल में ऐसा है कि वी आर नॉट अनअवेयर, अंग्रेज़ी हम लोगों की आती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अंग्रेज़ी में अशरे भी पढ़े। मसला जो है वो लफ्ज़ों की तरतीब से होता है, क्योंकि हम आपकी नीयत से वाकिफ़ नहीं है कि भाई आप क्या कह रहे हैं, तो हमारा एतराज़ अपनी जगह पर है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने ये कोशिश इसके पहले की थी, लेकिन कुछ माहौल इस तरह से पैदा किया गया और कुछ प्रेशराइज इस तरह से किया गया कि जो अंजुमनें थी, जो इदारे थे, जो अफराद थे, बहुत मजबूर होकर जब हम फ्रंट में आए तो उसके बाद भी चारों तरफ ये फैलाया गया कि ये साहब जो है इनका कोई काम नहीं है, बस ये हर तरफ जो है वो फितना फैलाते फिरते हैं। उसके बाद भी हमने कहा कि आप चाहे हम पर जितना इल्ज़ाम लगाएं, हमको चाहे जो कहें, लेकिन हम इस नुक्ते का जवाब ज़रूर चाहेंगे, तब जाके आज ये नौबत आई है। वरना अगर ये आसानी से हो जाए तो फिर ये यकीनन फसाद करना। गुज़श्ता आसानी से ही हुआ था, बुलाया गया था इसी जगह, इसी महफिल में, क्यों नहीं आए जो आने वाले थे, इसी महफिल में, ये नहीं कि नहीं हुआ, मौका आया, मौका हुआ, मौलाना तशरीफ फरमान, गवाह यहाँ पर बहुत से लोग हैं, वो भी रिकॉर्डेड हुई है। इमाम हैदर साहब इसके गवाह हैं, मौलाना जाफर अब्बास साहब इराक में, वरना मैं उन्हें भी गवाह के तौर पर पेश करता कि एक मीटिंग होने वाली थी बांद्रा मस्जिद में, जो मीटिंग कैंसिल हुई थी, और उसके बाद वो बच्चों से कहा गया कि बांद्रा पहुंचे थे वहाँ पर जी, वहाँ मीटिंग पहुंचा कैंसिल कर दी गई और मीटिंग यहाँ पर थी, बताया गया बांद्रा में। ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। सामने सबका गवाह अल्फाज हो सकता है कि लफ्ज़ों से अगर आप 400 मजलिस से ऑनलाइन है, अगर हम अगला पॉइंट पे पढ़ने से पहले, चूंकि आज फैसले की बात है, लिहाजा एक चीज़ और इसमें रह गई थी, वो मौलाना से वजाहत नहीं हो पाई कि मसला ये है कि मौलाना ने बहुत अच्छी बात कही कि आज के दौर में ज़रूरत है, बल्कि हर दौर में ज़रूरत है कि हमें मासूमीन की ज़िंदगी के उन पहलुओं को आश्कार किया जाए कि जिससे लोगों के लिए ये वाज़ेह हो सके कि वो हमारा नमूना अमल थे और नौजवान जो है उस तरह से उस राह में आगे बढ़े। मसला एतराज़ इस पर था कि क्या मतलब सुपर नेचुरल नहीं, बस इस पर एतराज़ था। तो मौला की जो क़ुव्वत है सुपर नेचुरल, खासतौर से इमाम मासूमीन जिनको हम, जिनकी खिलकत को ही हम सुपर नेचुरल मानते हैं, जिनका साया नहीं था यार, वो सुपर नेचुरल। आगे वाले सवाल कीजिए ना, कह चुके 2-3 बार जी, वजाहत कर दिया आगा ने। इसके बाद जो नुक्ता है आगा, वो तबर्रा के सिलसिले में है। तबर्रा हम लोगों ने अब तक, जो हमारे दादा मरहूम मौलाना सैयद नज़ीर हसन साहब क़िबला थे और जितने उलमा हैं,
ان سے ہم نے جو اب تک سنا ہے وہ یہ کہ تبرہ شیعت میں تولہ سے زیادہ اہم جز ہے، اور تبرہ کے بغیر کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صوفی ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جو تولہ تک آتے ہیں 12 اماموں کو مانتے ہیں لیکن تبرہ نہیں کرتے، لہٰذا وہ شیعہ نہیں کہلاتے۔ اب آپ نے جو کہا ہے وہ یہ ہے۔ پہلا اعتراض ہمارا یہ تھا کہ دعاؤں کا جو ذخیرہ ہے، اگر ہم یہ لوگوں کو معلوم ہوتا تو لوگ اہل بیت سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ دعاؤں کا ذخیرہ تو آج ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور امام زمانہ کی غیبت کے بعد دعاؤں کا ذخیرہ ہے، لیکن خود جن سے دعائیں آئی ہیں جب وہ خود بھی دعائیں پڑھتے تھے تو ضروری نہیں کہ ساری دنیا ان کی طرف آ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ لیکن ہم نے ان کو بلایا نہیں ہے بلکہ گالیاں دے دے کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو اب اگر یہ ہے تو اس سے ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو گالیاں دے دے کے دروازہ بند کر رہے ہیں، اس کے کیا معنی؟ بہت ہی اچھا سوال پھر اگین وہ پوری مجلس اگر سنیں گے تو بہت ہی معاش۔ یہاں پر بھی میں نے بتا رہا ہوں، اگر آپ ذرا سا دیکھیے، میں ایک بتاتا ہوں، انسان کا پرسپیکٹیو ادراک، جیسے میں نے طے کر لیا کہ جناب حمید صاحب ٹھیک نہیں ہے تو میں ہر چیز جو ہے میں نیگیٹو سوچتا جاؤں گا، منفی سوچتا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک کتا سڑا ہوا گلا ہوا تھا، ایک صحابی نے کہا بو آ رہی ہے، ایک صحابی نے کہا کتنا بدبودار ہے، ہر ایک آگے بڑھتا گیا۔ حضرت عیسیٰ قریب آئے، دانت دیکھو کتنے خوبصورت ہے، اگر انسان مردار میں بھی چاہے تو ایک اچھی چیز لے سکتا ہے، اسی طرح سے ایک اچھی چیز میں بھی چاہے تو ایک مردار لے سکتا ہے۔ یہ انسان کے ادراک اور سمجھنے کا ایک انداز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہم بیٹھیں تو دیکھیے، مولا مومن کا یونیورسل قول ہے، انظر الی ما قال ولکن لا تنظر الی من قال، یہ دیکھ کون کیا کہہ رہا، یہ نہ دیکھ کون کہہ رہا، بلکہ الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدها۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ ولو من کافر ولو من منافق، بہرحال اس میں مجھے جانا نہیں۔ اس مسئلے کو بھی میں واضح طور پہ بتا چکا ہوں، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، شیعوں کی ہی محفل میں اگر آپ تبرعی کوئی جملے کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک سنی بھائی آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتا۔ امام صادق علیہ السلام امام صادق کے 4000 شاگرد تاریخ میں لکھے ہیں، بلکہ ان کی اولدیت کے ساتھ ان کے سن آف سو اینڈ سو تاریخ میں لکھے ہیں۔ اس میں ہر اسکول آف تھاٹ، یعنی کوئی اسکول آف تھاٹ ایسا نہیں تھا، کوئی مکتب فکر جس کو کہتے ہیں ایسا نہیں تھا جو امام کے دسترخوان سے اس رزق کو لے کر کے نہیں جاتا تھا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارا لہجہ اس طرح سے کریں کہ بجائے اس کی کہ چار دیواری میں محدود ہو۔ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس سے تبرہ میرا ثابت نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اگر سنی بھائیوں کا اٹریکٹ کرنا ہے، کہ ہندو کا اٹریکٹ کرنا ہے، غیر مسلم کا اٹریکٹ کرنا ہے، تو ہم کو یونیورسل میسج دینا ہے تاکہ وہ لوگ آ کر کے ہم کو سن سکیں۔ اگر ہم نے دروازے بند کر لیے تو یہ ہمارے۔ اب آئیے میرا نزدیک تبرہ کیا ہے۔ میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر۔ ایک ساتھ ٹھہریے، بیچ میں مت بولیے، پھر اس کے بعد بولیے۔ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، خدا سے دعا کرتا ہوں خدا انشاءاللہ نماز قضا نہ کرے۔ واجب نماز میں کم از کم پہلی 2 رکعت نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پہنچتا ہوں، تو انہی ذلیلوں کو سمجھتا ہوں، ان سے ہٹ کر کسی کو نہیں سمجھتا۔ دینے والوں پر مولانا، اگر آپ کا تبرہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے، دیکھیے آپ سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں آپ سے کوئی ذاتی پرخاش ہے۔ جو آپ نے کتے کی مثال دی، ہم تو آپ کو خدا کی جو اشرف المخلوق ہے
इंसान सिर्फ उसकी हैसियत से नहीं बल्कि एक शिया कौम के मौलाना की हैसियत से भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हर आलिम का हम रिस्पेक्ट करते हैं। मसला सिर्फ एतराज़ उन बातों पर है कि अगर आप कोई बात ऐसी करेंगे कि जिससे हमें महसूस हो रहा है कि ये अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है तो हम उस पर एतराज़ करेंगे। सिर्फ बात ये। अब तबर्रा के इसी नुक्ते में मौलाना बार बार कह रहे हैं पूरी मजलिस सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने 5 बार पूरी मजलिस सुनी और इस हिस्से का एक हिस्से का जवाब दिया। लफ्ज़ गाली जो था कोई आलिम कोई जाकिर मैंने तो आज तक नहीं देखा है, लखनऊ के भी आते हैं और दूसरी जगह के भी आते हैं कि जो तबर्रा करते हैं वो इसी नियत से करते हैं कि लोग समझे कि अहले बैत पर जुल्म क्या हुए ताकि जो गुमराह है ज़ालिमीन हैं उनको छोड़कर हक की तरफ आए। जब ये बताया नहीं जाएगा तो लोग कैसे हक की तरफ आएंगे। अब ये इसी हिस्से में आगे सुनिए, मौलाना ने कहा है कि तबर्रा की ज़रूरत किस दौर में थी और अब हमारा एतराज़ ये है कि जब तबर्रा दीन का जुज़ है तो हर दौर में उसकी ज़रूरत है और अब ज़रूरत ये मैसेज गलत है। यूनिवर्सल मैसेज को भी हम मानते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लेक्चर्स हम देते हैं क्रिश्चियंस में, हम उसमें जनरल बात करते हैं। बहुत से मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को, तकरीबन 25 सुन्नी 5 हिंदू और दूसरे अफराद कन्वर्ट हुए। वहाँ पर हम गुफ्तगू ये सोच कर करते हैं कि किस नज़रिए का आदमी आया है। लेकिन यहाँ पर जो मौलाना ने कहा कि औरंगजेब के ज़माने में मुमकिन है कि ज़रूरत थी, अब ज़रूरत नहीं, इस पर हमारे हो सकता है। इस्तेमाल देखिए असल में मेरा जो इशारा है तबर्रा एजिटेशन की तरफ, तारीख़ तबर्रा लखनऊ का किस्सा पूरा आप जानते हैं। अब उसके बाद आया आज उसी तबर्रा को लखनऊ में क्यों नहीं किया जा रहा है, आज 9 रबीउल अव्वल को क्यों नहीं कर रहा है? ना 30 साल तक बाकायदा बंद हुआ, उसके बाद आज इस शर्त पे हुआ कि आप अपना जुलूस निकालेंगे, वो उनका जुलूस निकालेंगे, दोनों जुलूस चल रहे हैं। जो आपका एक जुलूस था 2 जुलूस हो गए। अब देखिए अभी की बात मत कीजिए, मसला ये है मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप प्लीज। इस टुकड़े में भी जो मेरा फोकस है वो ज़रूरत दीन आज की तबलीगी ज़रूरत की गुफ्तगू है। खुद तबर्रा ना हो इस पे गुफ्तगू मेरी नहीं है। इज्तिमा मत कीजिए और कभी भी इज्तिमा इस तरह से ना हो। मैंने कहा कि नमाज के अज्जा में से तबर्रा है, बल्कि मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसमें मौला फरमाते हैं कि तुम मुसल्ले को, उस मैंने कई मजलिस में पढ़े हैं, उसमें अफसोस है कि वो मजलिस क्यों नहीं सुनाई जा रही है। उस मजलिस में मैंने सुनाया है कि जिसमें मौला ने फरमाया कि तुम अपने मुसल्ले को उस वक्त तक ना छोड़ो जब तक कि 4 मर्दों पर 4 औरतों पर लानत न पढ़ो। अगर मौलाना का नजरिया और अकीदा है तो ये लफ्ज़ों से हम भी इसको मानते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, ज़ीदियत मुर्दाबाद, दुश्मनाने अहले बैत पर लानत निशान। तबर्रा के सिलसिले की गुफ्तगू है, पहला नुक्ता हो गया। अब दूसरे एक मजलिस में मौलाना ने कहा, ये मजलिस भी 5ही बार सुन चुके हम लोग, मौलाना ने कहा तबर्रा यानी गुनाहों से दूरी। हमारा एतराज़ ये था कि अगर गुनाहों से दूर होने के लिए कहा जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर इस तरह से लुग़वी माने बयान किए जाएंगे तो सलात यानी दुआ हो जाएगा और इस तरह से जो है वो मामला पूरा ट्विस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्लिप भी आप हज़रात सुनिए। ये बस नहीं, आपने सुना दिया, बस काफी नहीं है। मान है ना कि हमने कहा सुना नहीं, साफ नजरिया वाज़ेह है क्या कहना चाहते हैं आप। जो बता रहे हैं कि ये अच्छा होता है, इसीलिए अगर हकीकत में मजलिस में हर मजलिस के बाद या मजलिस सुनने के बाद आज की दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है कि सेकेंडों में जिससे चाहे जहाँ से चाहे राबता पैदा कर सकते हैं। राबता पैदा करके
बाकरी तूने ये कहा है, ज़रा सा मुझे समझा दे, तो शायद ये इतना पायलअप होकर के एक्सप्लोजन होने की ज़रूरत थी नहीं थी। ये बारूद जो है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज मुझे खुशी है, मुझे जो कोई सामने बोलता है इतना खुश होता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अल-मुमिनु मिरातुल मुमिन, मोमिन एक दूसरे का आईना है, सामने खड़े हो जाए, बोले यहाँ दाग है, यहाँ दाग है, यहाँ दाग है, और उसके बाद दुआ से कर ले। बात जो है उसी वक्त ख़त्म हो जाती है, बजाय इसके कि उसको और बढ़ा दिया जाए। इस मकाम पर भी मैं कहूँगा कि मेरा अप्रोच शायद गलत रहा हो। मैं अल्लाह की बारगाह में, बारगाह परवरदिगार में, अहले बैत की बारगाह में बहुत ज़्यादा मुखलिसाना तौबा करता हूँ, और आपकी बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में माफ़ी का ख़ासदार हूँ। और मेरा मकसद इससे खुद दीन के अकायद को ठेस पहुँचाना नहीं। मोहम्मद वाले एक आप मौलाना साहब तशरीफ फरमा है, बाकी यहाँ पर है, आपस में गुफ्तगू हो रही है इस वाले पर। अखलाक बेटी के आउट ऑफ बेटी। मौलाना आपने ये जो बातें कही है तमाम बातें, उसमें ये बात भी आपने वाज़ेह कर दी और आपने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन आप जो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि आपकी बारगाह में नहीं, तो मैं आपकी खिदमत में बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज़ करूँगा कि अगर बहैसियत मोमिन आपको मुझसे कोई तकलीफ होगी तो मैं आपसे भी माफ़ी मांगूंगा, इसलिए कि आप भी आलिम हैं और आप भी जानते हैं कि अगर मोमिन को तकलीफ होगी तो अल्लाह तो शायद अपने मामले को माफ़ कर दे, लेकिन मोमिन के मामले को माफ़ नहीं करेगा जब तक खुद से माफ़ी ना मांगी जाए। ये आखिरी नुक्ता जो पेश किया जा रहा है, फिर हम बार बार कह रहे हैं कि मौलाना की मजलिसें जो मौलाना समझ रहे हैं कि हम दूसरी मजलिसें नहीं सुनते हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से जब ये मामला आए तो हमने खुद अपने आप को बचाने के लिए कि आखिरत में बहरहाल हमसे भी सवाल होगा अगर हम किसी को बिला वजह बदनाम करेंगे, हम मौलाना ज़की बाकरी की तमाम मजलिसें बड़े ही क्लोजली सुनते हैं और सुनने के बाद गौर भी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिला वजह इतराज़ हो रहे हैं। इस तरह के 50 नुकात हैं जिसमें से सिर्फ 5 पेश किए जा रहे हैं। ये आखिरी नुक्ता जो है वो हम पेश कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने इस्लाम के सिलसिले में कहा कि इस्लाम जो हमारे पास है वो मुकम्मल नहीं है, पार्शियल लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं बताता हूँ, अब ये और लास्ट है, पढ़ लीजिए, सुना दीजिए, आप कह दिए मैं समझ गया। इसी जहाँ पर मौलाना तशरीफ फरमा थे, गुज़श्ता साल यहीं पर ये सवाल हुआ था, तो उसी सवाल के जवाब के लिए मैंने 10 मजलिसें पढ़ी हैं बांद्रा मस्जिद में। मेरा ये जुमला था कि दीन टोटल सिस्टम ऑफ लाइफ है, इंसान की ज़िंदगी के गुजारने का सलीका, दीन सारे उलमा जानते हैं वे ऑफ लाइफ है। उसके लिए दीन मुतकादी हुकूमत है, जब तक हुकूमत नहीं होगी दीन पार्शियल अदा हो सकेगा, टोटल अदा नहीं हो सकेगा। सवाल पढ़िए, ये भी बता इंशाल्लाह जब मौलाए कब दीन कामिल रहा, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल में पूरा मुकम्मल गदीर में उन्होंने दे दिया अल यौम अकमलतु लकुम। उसके बाद फिर मौला ने 4.5-5 साल मुकम्मल दीन चलाया एज ए सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम, और इंशाअल्लाह उसी तरह की हुकूमत इमाम ज़माना ईरान कोशिश कर रहा है, टोटल नहीं कर सकता। आखिरी जो हिस्सा था वो ये था हमारा पूछना कि इस हुकूमत से मुराद किसकी हुकूमत है, लेकिन आपने वाज़ेह कर दिया हुकूमत इमाम ज़माना। इमाम ज़माना की हुकूमत के कायम होने के लिए एक सलवात बावाज़ बोला बस ये आखिरी मसला था। और फिर आज जो 5 नुक्ते थे वो हमने आपकी खिदमत में पेश किए।
آپ سے گزارش ہے کہ 50 بھی پورے میرے لیے جی میں ضرور انشاءاللہ میں اس کو ہر ایک مجلس میں اس کو واضح اسی سال 5 مجلسیں ہو رہی ہیں، ان مجالس کو میں نے دوسرا شہزادی کا فدق کا خطبہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، مگر چونکہ آج کے حالات ایسے ہیں ان کو میں واضح کر دوں گا. مجھے مومنین کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے بلکہ تبلیغ دین حقیقی کرنا ہے. سلوات پڑھیے. بات جو ہے وہ ختم یہاں پر ہو رہی ہے. انشاءاللہ علماء جو ہے اس پر اب جو بھی کہیں ایسا ہے کہ یہ علماء کی آپس میں گفتگو ہوگی، جو بھی حضرات ہیں وہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہم بعد میں جو ہوگا وہ بتا دیں. جی لیکن سب کے سامنے میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سے ہم لوگوں نے یہ ایشو اٹھایا ہے، یہ سب نکات کیے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو اگر پہلے ہو جاتی تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کا کانٹیکٹ، آپ کی ساری ڈیٹیلز اور آپ تک ایکسیس اگر ہم سب کا ہو تو ڈائریکٹ آپ سے ہم لوگ ہمیشہ بات کریں گے اور کوئی مسئلہ نہیں. اللہم صلی علی محمد. آج کی دنیا میں باقری تو ہر مرتبہ جیب میں رکھ کر کے پھرتا ہے، دیتا ہے ہر ایک کو ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، ای میل. کیا سنیے اس کے بعد ون والوں سے یہاں پہ کتنے فیملی سے بس نہیں. اس زمانے میں یہ معافی چاہتا ہوں، اس زمانے میں یہ بات نہیں ہوتی. کسی سے مولانا سے پوچھ لیتے، کسی سے پوچھ لیتے آپ کو، تو یہ ایشو ختم ہو گیا. بہرحال میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ پورے مومنین سے، یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ٹو ریزالو دی پرابلم، انکریز دی پرابلم نہیں. ہم لوگ جو ہیں پرابلم کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہاں سے اٹھ کر کے جائیے تو دل صاف رکھیے، مومن کی طرح، آئینے کی طرح، باؤسوں کو مت رکھیے دلوں میں. اور مجھے مجھے درد تکلیف ہوئی ہے، میں اس کو روتا رہوں گا کہ اس کے سیڈیز جو بنائے گئے، دنیا بھر تقسیم کیے گئے، اس سے پہلے اگر بات ہوتی تو بات وہیں کی 2+3=5 ہو جاتی. اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صلوات پڑھیے. اعتراض ہم لوگوں نے کیا تھا، سی ڈی ہم لوگوں نے بنائی تھی، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ہر طرح سے کوشش یہ کی کہ اسی طرح سے سارے علماء بیٹھے. بلکہ میں آئندہ کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ کسی سے بھی اس طرح کی غلطی ہو تو کم سے کم علماء کی کوئی بینچ ہو کہ جس کے سامنے وہ مسئلہ رکھا جا سکے، اور اس کے بعد وہ لوگ اس شخص کو بلائیں، اس عالم کو، سالم کو، اور بلانے کے بعد اس سے پوچھیں اور اس طرح کے مسائل نہ کھڑے. اگر اس طرح کا سسٹم ایک بن جائے گا تو آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گزارش یہ ہے کہ جہاں کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں مجلس ہونے والی تھی آغاز کی، یہاں جو ہے مجلس کو روکنے کے سلسلے میں جو اقدام ہوئے ہیں رات، یہاں کیا ضروری تھا کہ آپ کو عالم دین پہ اعتبار نہیں تھا، ٹرسٹی حضرات پہ اعتبار تھا. ٹرسٹی حضرات سے نہ بات کرتے ہوئے یہی بات اگر ڈائریکٹ آپ نے کل ہم سے کی ہوتی اگر کچھ سمجھتے ہوئے تو یہ جو مسائل رات کھڑے ہوئے وہ نہیں ہوتا. اور جو مسئلہ جسے علماء کرام آج موجود، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نہ کرتا اس کے بعد میرے لیے آپ کوئی بھی جلوس نکال سکتے تھے. لیکن آپ نے سب سے بڑی غلط بات یہ کی ہے کہ آپ اس چیز کو ڈائریکٹ جو ہے پبلک میں لے کے گئے. جو مسائل مذہبی ہیں ان کو مذہب کسی سلسلے سے جو ٹھیکیدار مذہب کے ان کے پاس رکھنا چاہیے. آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، آپ میرے دوست بھی ہیں جی شان صاحب، اور یقیناً میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکتا تھا. ہم لوگ جب مولانا علی مہدی صاحب قبلہ کے پاس گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گفتگو کے انداز سے جو جوش اور جذبہ نوجوانوں میں بھرا ہوا تھا اس سے قبلہ کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی. اس وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ اب بات جو ہے وہ ٹرسٹی سے. ایک منٹ، آپ نے کل جو ہے سمجھے آپ کیا مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے بات کرنے آئے، ابھی ذیشان سے بات کرنے جاتے ہیں. ذیشان سے سنیے، پورا ختم ہو نہ مولانا کہا نہ صاحب کہا. میں مولا کو حاضر ناظر جان کر اہل بیت کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن اگر آپ سمجھتے کہ میں نے کہا تھا سمجھتا نہیں، میں نے سنا ہے. ایک بات دوسری سنیے، آقا میں نے ایسا دوسری سنیے، آقا میں نے ایسا نہیں کہا. میں بھی دوسری بات بتاؤں. سوال ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو جی کوئی بات کرنی تھی جی تو چند بچے جی جو میرے بیٹے یا بھتیجے کا برابر ہیں جی وہ ان سے سوال نہ کراتے. جی آپ خود مجھ سے آ کے سوال قبلہ میں نے سب سے پہلے آ کے آپ سے کہا تھا، گزارش کی تھی کہ قبلہ ہم ٹرسٹی کے پاس گئے تھے، آپ تھوڑی دیر اگر بیٹھ جائیں تو آپ سے گفتگو ہو مجھ سے جائے. بیٹھنے کو نہیں کہا. قبلہ میں نے کہا تھا سجاد صاحب بھی موجود تھے وہاں. کسی نے بیٹھنے کا ویڈیو آپ کا بنا ہوا ہے، اس میں جو سنیے. جی میں جھوٹ بول رہا ہوں. قبلہ میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آپ کیا غلط فہمی آپ کو بھی ہے. ابھی دیکھیں کیا ہے، میں تو کہتا ہوں ابھی عذاب آئے اور وہ ختم ہو جائے. جو جھوٹ بول رہا ہوں ایسا نہ ہو جائے.
ऐसा दीवाना हो जाए कि उसको कोई अकलमंद भी ना कहे। सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए, वहाँ पे क्या हुआ, मातम हुआ, मेरी आदत है दुआ पढ़ने, मैं दुआ पढ़ता रहा, बच्चों ने ऐलान किया जलसा होगा, ठीक है, मुझसे क्या मतलब, हुआ जलसा किसी का, और मुझसे चंद बच्चे सवाल कर रहे हैं, मैं क्या सवाल कर रहा है, वीडियो बना रहे हैं, आपसे 5 सवाल, वो बच्चे जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल ये है कि ज़कीर आज़मी साहब ने स्पोर्टमैन का, वो बच्चे मेरे पास भी आए थे, मेरी वीडियो में नहीं। सुनिए, बात नहीं करने देते, ये अपने बोल रखते हैं, पहले मेरी तो सुनो, अरे 200 मेरे शागिर्द हैं, समझे नहीं, ऐसा नहीं हो घास खोदा हुआ बता रहा हूँ मैं, नहीं उसने की बात मजाक नहीं, चैलेंज है बहुत ही सीरियस। अब अपने राइट तो चलने ही नहीं दिया, अब भी चैलेंज है, राइट तो चलने देते हैं, तो 2 बैल चलते हैं नहीं, लेफ्ट चलता है वो हमेशा, राइट नहीं चल सकता, अब भी चैलेंज है, अभी चैलेंज कर रहा हूँ मैं, ये बात जो कहता हूँ अल्लाह के और अपने भरोसे पे करता हूँ, इमाम ज़माना के और अपने से ज़्यादा इमाम को मानता हूँ और जिनको मानता हूँ उनका नाम नहीं लूँगा। सुनिए, तो वहाँ के ऊपर देखिए चंद आगा बच्चे आते हैं, वो आगे कहते हैं ये पढ़ा सकी बाबू साहब ने फला पढ़ा, मैंने कहा मेरे भाई मेरे अल्फाज नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने कहा देखिए बेगुनाह सिर्फ एक है और वो पर्दे में है, गलती हर एक से हो सकती है, तो मुझसे क्या कहते हैं आप ज़की बाकी के साथ है, अरे आपने नहीं कहा, आपके बच्चों ने कहा है, आपके चेलों ने कहा है, पूछिए उनसे कहा है, आप नहीं थे, आपने कहा कि लफ्ज़ इधर-उधर हो सकती है, लफ्ज़ बहुत ज्यादा इधर-उधर है, लफ्ज़ बहुत ज्यादा नहीं है, मुझसे ये कहा कि आप जो कहना चाहें मुझसे कह दें, मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी बात एक ये है कि आपको चाहिए था कि आप उससे सवाल करते, उन 4 लड़कों को लेकर बांद्रा का लड़का अली है, सुनिए अभी मुझे बोलने दीजिए, उसने रोकना चाहा, आपके लड़के रुके नहीं, समझे आपने, बांद्रा के किसी लड़के की हिम्मत नहीं पड़ी आके मुझसे सवाल करे, कुर्ला के मुंबई के कहाँ गए, मैं नहीं जानता किसी को भी, मैं उनको पहचानता नहीं जिन्होंने मुझसे सवाल किए थे, पूछिए उन बच्चों को बुला के, उनमें से एक बच्चा बैठा है, बच्चे यहीं आ रहा, सुनिए मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, बोलो हाँ, एक मसला लेके आए तो आपको जवाब देना सवाल चाहिए। का जवाब दो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, आप नहीं पहचानते तो मुझे क्या पता है, नहीं पहचानते आप, मगर हम तो एक मसला लेके आए थे, मेरी बात सुनो, मैं तो पहचानता हूँ, तुम नहीं मेरे बेटे बराबर हो बेटे, पहचानते, सही बात है, आप नहीं पहचानते, मगर आपने कहा कि हम आपके नौकर नहीं, हमने कहा अहले बैत के नौकर थे आप। हम लोग सुनिए उसके पास वो मेरे पीछे वो ये बन रहे हैं, आगा वीडियो बना रहे हैं मेरा, अरे तरीका जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे आके क्यों आपने परमिशन दी वीडियो बनाना है, मैंने कहा वीडियो बना रहा हम वो बनाएंगे, मेरी बात सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं इंतहाई जज्बाती आदमी हूँ, यहाँ पर कोई भी शायद में जज्बाती आदमी हो, ये अपने आप को समझते हैं इंसान जज्बाती में हूँ, और चलिए इनके और मेरा चैलेंज हो जाए किसी चीज़ पर भी, सबके सामने कर रहा हूँ, ये क्या करेंगे और मैं इससे ज़्यादा न करके दिखा दूँ तो ये अमामा करके खेलूंगा, चलो उसको मैं आगा बोलो क्या करना चाहते हो, नहीं आगा सैयद हूँ, वो सब जज्बात नहीं जाके जज्बात मोहम्मद वाले मोहम्मद थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा प्लीज, यहाँ बैठे हुए हैं, एक सेकंड सही बात नहीं, इस्तेहज़ाए पैगंबरान की आयतें हैं, ये है क्या, कसम खुदा के खा के रहा हूँ इमाम ज़माना की, सिवाय इमाम ज़माना के किसी से नहीं करता, ऐलान है मेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कोशिश ये करें, यहाँ पर जरा सा
काम डन हो जाए, सब लोग ठंडे हो जाए। अब जो है मुझे किसी के जवाब, हमें किसी के जवाब, मौलाना ने जो आपने बताया, जज्बात के साथ किया, कल के थोड़ा सा पानी दीजिए, और हालात जो जिस तरह से लाए गए इस पर मौलाना को गुस्सा है, और हम सब भी जो अंदर घुल रहे हैं इन चीजों को जितना से या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आपस में तारुफ, आपस में पहचानिए, और इस तरह से न जाइए उलमा के सामने, इस तरह से गुस्ताखियां मत कीजिए। और गुजारिश है कि अगर बात करना है तो किसी ढंग के आदमी से बैठ कर, एक सेकंड है, मैं से चाहता हूं मौलाना से, अगर आपको जरा से भी हम लोगों के किसी तरीके से मैं अपनी तरफ से और जिन्होंने जाने अनजाने में किए उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, इसलिए कि आप बुजुर्ग हैं। मेरा दिल नहीं, बुजुर्ग ने छोटी बात है, मेरा दिल है आईना। नहीं, हम आपको बिल्कुल आईने वाला मानते हैं। मैं मुंह में बोलने वाला, मैं आप हमारे लिए बुजुर्ग आलिम हैं, मोहतरम आलिम हैं। मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, मैं चला चलता और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हमने किया, लेकिन अगर आप समझते नहीं किया तो मैं माफी चाहता आप हजरात, हम जो भी वैसे तो फैसला हो चुकी है। बस ये कि आप हजरात अगर तखलिया कर दें, थोड़ा सा हम गुफ्तगू आपस में कर लें, उसके बाद आपको मौलाना बता देंगे। तखलीक की जरूरत नहीं, इशू बन जाएगा, अभी इशू नहीं बनाना हमको, इशू नहीं बनेगा। प्लीज आप कुछ उलमा लोग बात कर रहे हैं, लेट देम डिसाइड प्लीज, नो इंटरफियरेंस, नॉट इंटरफेयर एनीबॉडी। जैसा कि बातें सब हो गई हमने सुनी, और मौलाना के ऊपर जो एतराज़ात हामिद साहब ने या उन एतराज़ात हर एक का वाज़ह जवाब मौलाना ने दिया। अभी हमने तो ऐसा समझा कि 100 एतराज़ भी करते मौलाना सबके जवाब, अगर गलती हो तो गलती की माफ़ी मांगे, तो इससे बढ़कर क्या चाहें हम। तो इनको मजलिस करने से रोकने का कोई माना नहीं। एक बात ये भी है, मौलाना भी आइंदा एहतियात से काम ले ले, क्योंकि मैं उम्र के हिसाब से बड़ा हूँ, इसलिए मौलाना से ख्वाहिश करता हूँ एहतियात से काम सब मिल करके इमाम ज़माना की दुआ पढ़िए, इंशाल्लाह दुआ करिए, हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मनान दीन से लड़े जो हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहिल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना से कि छोटी सी दुआ कर दें हमारी तौफीक़ात के साथ। अब प्लीज प्लीज मौलाना आप प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व बिहक़्क़ि अइम्मतिल तिस्अति त्ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फस्तजिब दुआना वक़्ज़ि हाजातिना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
परवरदिगारा हमारी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हमारे नाक़िस अमाल को अपने करम से कबूल फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में विलाए आले मोहम्मद को हमारे दिल में रोज़ अफ़ज़ू इजाफ़ा करा। हमारी नस्लों में अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मुवद्दत और उनसे उल्फत रोज़ अफ़ज़ू इजाफ़ा करा। मालिक हमारा हश्र व नश्र अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के साथ हो। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि हम इमाम ज़माना के नासिरों में और उनके मददगारों में शुमार हो सके। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे नाक़िस अमाल को कबूल फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा, उलमाए आलाम मराजे कराम की हिफाजत फरमा, रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, जमहूरियत इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा, अमेरिका, इसराइल और उसकी हलीफ ताकतों को नीस्त व नाबूद फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरी गुजारिश है कि उलमाए कराम और जो दूसरे हज़रात हैं वो अगर एक दूसरे से मुसाफिया करें और क्या नाम है मुआनका कर लें तो मेरे अभी भाईजान सब जन ऊपर 4 वाले में गए, नियत का इंतजाम है। इतना आदमी अवेलेबल सलवात पढ़ते No,